Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to our next lecture, which is based on OCM. This is chapter 2 and this is, I think, lecture number 3. Okay. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं, एंड कोइंसिडेंटली ये मुझे, मैं सच में बताऊं, अभी नोटिस हुआ कि जो हमने इसके पहले किया, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, वो तो कवर पे ही लिखा गया है. तो उसी के हिसाब से आज हम तीसरे मुद्दे पे जा रहे हैं, एंड व्हाट इज़ दैट, वो भी कवर पे लिखा गया है, स्टाफिंग. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टाफिंग? पहली बात तो हम लोग अभी तक चैप्टर नंबर 2 पे ही है, ताकि उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो. ओके, अगेन अ लॉन्ग टाइम बैक मिस्टर हेनरी फियोल ने ये कहा था कि ये स्पेसिफिक वर्ड उन्होंने उनके एक्सप्लेनेशन में यूज़ नहीं किया था, बट बाय द टाइम उनकी ज़माने से हमारा ज़माना आ चुका है, चीज़ें थोड़ी तब्दील हो चुकी है. देयर हैज़ बीन अ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस. वी हैव फिनिश्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वी आर ऑन द थर्ड वन विच इज़ स्टाफिंग. ओके, सिंपल शब्दों में स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? वेल, कोई भी ऑफिस के अंदर, नॉट जस्ट ऑफिस में, कोई भी फैक्ट्री के अंदर, ओके, फ्रॉम दी मोस्ट वॉचमैन के सिलेक्शन से लेकर टॉप लेवल जो अथॉरिटी होती है, किसी ना किसी को तो उसको सिलेक्ट करना ही पड़ता है. वो एक तरीके से स्टाफिंग कहते हैं. एट द बिगिनिंग और इन द प्रायर व्हाट यू कॉल चैप्टर, यू हैव बीन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेस. पैसा एक रिसोर्स होता है, बराबर. मशीन्स एक रिसोर्स होते हैं, बट ये मेन सबसे कीमती रिसोर्स है. यू कैन हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन हैव द बेस्ट मशीनरी, बट इफ़ यू डोंट हैव मेन, अगर जो लोग आपके यहाँ पर काम करने आते, उनकी क्वालिटी, उनका क्वालिफिकेशन, उनका टेक्निकल नॉलेज अगर सही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टाफिंग का जो काम है ना, वो बुरा हुआ है. वेरी सिंपल. द क्वालिटी ऑफ मेन, प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा मत बोलना सर आप मेन की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है. देखो, मैडम्स भी है, ओके, स्टाफ के अंदर. हाँ, सो द क्वालिटी ऑफ योर लेबर फोर्स, ऑफ योर वर्क फोर्स डिटरमाइंस द फ्यूचर prospects of the entire enterprise, of the entire organization. So, staffing एक बहुत कीमती कुंजी है, चाबी. अगर ये सही चाबी सही टाइम पे सही लोगों द्वारा नहीं लगाई गई,
ऑटोमेटिकली चीजें गिरने लगेगी. सो कहा क्या गया है, स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जो प्लान है, बिकॉज यू सी कंपनीज अलग अलग होते हैं, कंपनीज अलग अलग काम, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज देते हैं. तो यू कांट से ये आदमी कंपनी में काम करेगा, बट कौन सी कंपनी में काम करेगा, क्या काम करेगा, उसका क्वालिफिकेशन देखो, उसकी पढ़ाई लिखाई देखो, उसका बैकग्राउंड देखो. स्टाफिंग के टाइम पे ये होना चाहिए. सो ये जो डिपार्टमेंट होता है एक कंपनी का या मैनेजमेंट का, ये जो फंक्शन होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जस्ट लाइक द रिमेनिंग, बिकॉज हियर यू और योर डिपार्टमेंट इज डिटरमाइनिंग, ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि हमने तो एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमको एक नया प्रोजेक्ट है, हमको 50 लोगों की जरूरत है, इंटरव्यू देने के लिए 500 आ गए. 500 में से आप 50 कैसे सिलेक्ट करोगे? करना तो पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट यू रिक्वायर. यू डोंट रिक्वायर लेस, यू शुड नॉट बी एम्प्लॉइंग मोर. यू हैव टू कंडक्ट द स्टाफिंग प्रोसेस इन सच अ मैनर कि यू हैव टू पिक द करेक्ट पीपल फॉर द करेक्ट जॉब. तो ही इस तरह खुश लोग नजर आएंगे. ओके, सो अगेन प्लानिंग का डिस्कशन हो चुका है, ऑर्गेनाइजिंग का डिस्कशन हो चुका है. आज हम चर्चा स्टाफिंग पे करते हैं. ओके, आफ्टर लर्निंग द मीनिंग, किसी ने क्या इसका डेफिनेशन दिया है? अरे बहुतों ने डेफिनेशन दिया है. थियो हाइमन, इनका क्या कहना था? पूरी कोशिश की कि भाई इनका तस्वीर मिल जाए ताकि यहाँ पर लगाकर हम दिखा सके आपको, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन कुछ लोगों की तस्वीरें नहीं मिल पाती है. इनका कहना था स्टाफिंग फंक्शन क्या होता है? पर्टेन्स टू, कनेक्टेड टू व्हाट? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स. ओके, सो सबसे पहला मुद्दा, रिक्रूट किसको करे, उसके बाद काम किसको दे, उसके बाद उसका डेवलपमेंट. इट इज नॉट जस्ट स्टाफिंग, इज नॉट हाँ चलो भाई ये बंदे को ये काम पे लगा दो, फिर हमारा काम खत्म. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. उसको काम पे लगाना, उसका काम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना, और क्या वो काम अपना कर रहा है और क्या वो उसमें खुश है, ये सब स्टार्ट से लेके एंड तक आपको देखना पड़ता है. ओके, तो थियो हाइमन का ये कहना था. लूथर गिलिक, उनका ऐसा कहना है, स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन. प्लीज अंडरस्टैंड सर, वो पर्सनल तो निजी मामला होता है, इधर पब्लिक में क्यों डिस्कस कर रहे हो? नहीं, ये वो पर्सनल नहीं है. ये द पर्सनल मीन्स द पीपल, पर्सनल मीन्स द पीपल. ओके, वर्डिंग अलग है, आप देख सकते हो. फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क. सो इट इज नॉट जस्ट हाँ 100 लोगों को ले लो, ओके, उनको जमा कर रखो और उनको भगाओ मत, ऐसे कुछ कंडीशंस रखो. अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का सबसे बड़ा काम क्या? लोगों को लेकर आओ. मिल जाएंगे, लेबरर्स मिल जाएंगे, ओके, बट उनको बनाए रखना है, स्पेशली लेबरर्स, क्योंकि वो कोई मंथली तनख्वाह पे काम नहीं करते हैं, उनको डेली वेजेस मिलता है. सो द सिचुएशन जहां पे वो काम करते हैं, इट हैज टू बी फेवरेबल, इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू द बॉडी. हाँ, तो वो उसका काम है, उसकी स्टाफिंग का काम है. लास्टली एस बेंजामिन ने क्या कहा है? स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, ढूंढना, असेसिंग, placing, evaluating and directing individuals at work. So this is not connected to the money part, this is not connected to the machine part, this is connected to the men and women part. Okay, इनका तो हो गया as far as the definition is concerned. Okay, अभी importance, I presume इसके अंदर भी 10 मुद्दे हैं importance के. By that you also come to know the benefits of the function of staffing. First, effective managerial function. You see, there are इसके पहले भी what do you call managerial functions. Okay, by that what do I mean? The first one which was planning, the second one which was organizing, वो भी है. ये इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर आप एक्चुअली ऐसे लोगों को नियुक्त करने वाले हो जो अगर काम सही से करे, अगर उनको सही जगह पे अपॉइंट किया गया है, सही टीम के अंदर रखा गया है, उनका भी प्रमोशन प्रोग्रेस सक्सेस होगा, ऑटोमेटिकली पूरे एंटरप्राइज का भी प्रमोशन प्रोग्रेस सक्सेस होगा. कहा है स्टाफिंग इज द की
की फंक्शन मतलब अगर गलत चाबी गलत गाड़ी के की होल में डाल दी, एक तो अटक जाएगी, गाड़ी भी शुरू होने वाली नहीं है. सो यू हैव टू नो दैट स्टाफिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेन चाबी, कुंजी ऑफ व्हाट, of performance of other functions of management such as planning, organizing, directing, controlling. Competent workforce can work effectively in different functional areas like production, sales, finance, etc. Competent workforce, workforce मतलब people, competent का मतलब क्या है, काबिल वर्कफोर्स कहाँ पे काम कर सकते हैं, जहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया है, प्रोडक्शन के एरिया में, सेल्स के एरिया में, फाइनेंस के एरिया में. मैनेजरियल फंक्शन एक ऐसा है जो असरदार है, जो इफेक्टिव है, जो एक्शन वाला काम का है. सेकेंड इंपॉर्टेंस, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. दिस इज अ वेरी कॉमन पॉइंट. प्लानिंग कहो ये मुद्दा आता है, ऑर्गेनाइजिंग कहो ये मुद्दा आता है, एंड स्टाफिंग कहो तो ये मुद्दा आता है. whatever resource you have, but in staffing we are only talking about human resources, not money, not machines, human resources. So जो भी अपॉइंट करते हैं, you see in the entire country of India, देखने के लिए तो ना हमको इंटरव्यूज पे कौन दिखाई देते हैं, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन. बीजेपी का ये स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस का ये स्पोक्स पर्सन है, ओके, लेफ्ट ये, राइट, सेंटर वेंटर, ओके, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के. बट हु रन्स द कंट्री ऑफ इंडिया? इट इज नॉट दीज पॉलिटिशियंस. येस, दे मेक द डिसीजंस, येस, दे पुट इन द वोट्स इन द राज्यसभा एंड द लोकसभा, बट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होते हैं, बराबर, विच आर वेरी वेरी डिटेल्ड, उसके लिए अच्छा नॉलेज लगता है. यू रिक्वायर सर्टन लेवल के ऑफिसर्स, ओके, जिन्होंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास किए हैं, ओके, उनका भी इंटरव्यू होता है. व्हेन देयर इंटरव्यूज आर कंडक्टेड, मतलब मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ओके. देयर आर मेनी हाई लेवल एग्जामिनेशंस विच आर कंडक्टेड, जहां पे लोग एग्जाम्स को क्लियर करके, इंटरव्यू को क्लियर करके, दे आर सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड एट अ पर्टिकुलर पोजिशन. द पॉलिटिशियन इज ओनली द फेस फॉर द न्यूज चैनल एंड टू क्रिएट ड्रामा ऑन द न्यूज चैनल. बट जो दिमाग है ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया एंड द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया आर नॉट इन दीज पॉलिटिशियंस, वेल एटलीस्ट मेनी ऑफ देम, ओके. हाँ, तो ये उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना. सो देर इज अ टीम जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है, एंड दे एग्जैक्टली नो कि क्या क्वेश्चन करना है, और दे एग्जैक्टली नो कि इसका मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ तो आप उसके हाथ में डंबल दे दो, वो डंबल उठा लेगा, बट मेंटल स्ट्रेंथ, okay, is he a mentally fit person, capable person of taking certain number of decisions. So staffing के टाइम पे ये सब पता चलता है, and such people are elected such that जो हमारे देश में रिसोर्स है लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, उन लोगों का अपॉइंटमेंट सही जगह पे किया जा सकता है. थर्ड वन, builds cordial relationship. You see, if you appoint the right people at the right place, ओके, ऑटोमेटिकली अगर एक ही टीम में एक बंदा वेरी हाईली क्वालिफाइड है, ही इज गेटिंग द सेम पे, एंड एक बंदा नॉट एट ऑल क्वालिफाइड स्टिल इज इन दैट टीम एंड गेटिंग द सेम पे, डू यू थिंक दे विल बी, एक टीम को काम करने के लिए एवरी मेंबर, ये हाथ को काम करने के लिए ये पांचों को साथ में काम करना पड़ता है. एक ये नहीं बोल सकता है मैं अलग डायरेक्शन में जाता हूँ, नहीं, द होल टीम हैज टू ऑर्गेनाइज एंड वर्क इफेक्टिवली. बट इफ वन पर्सन फील्स वॉट, यार मैंने जितनी पढ़ाई की है उसके लिए जो मुझको पगार मिलता है, मेरे एक्सपीरियंस के लिए जो पगार मिलता है, ये जो दूसरा वाला है ना उसने तो उतनी पगार की ही नहीं, दे विल बी एनिमोसिटी, दे विल बी फाइट, ओके. सीधे सीधे पंचिंग फाइट, MMA फाइट नहीं होगा, बट दे विल नॉट बी अ कॉर्डियल रिलेशनशिप. पूरी टीम को काम करना है, तो एक का रिश्ता दूसरे के साथ, दूसरे का रिश्ता तीसरे के साथ अच्छा होना चाहिए, ओके. इट हैज़ टू बी टुगेदर, इट कैनॉट बी अलग अलग. स्टाफिंग को टाइम पे वो ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है? दैट द पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशंस एंड द राइट टैलेंट आर फिक्स्ड, आर पोजिशन्ड एट सच प्लेसेस वेयर देयर इज इक्विलिब्रियम एंड इट इज नॉट अप एंड
डाउन, ताकि कोर्डियल रिलेशनशिप ओके मेंटेन किया जा सके, एक टीम स्पिरिट मेंटेन किया जा सके. नेक्स्ट, हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. डेफिनेटली one very important task, humans have to be developed. Okay, human as a resource have to be developed. तो ध्यान रखना पड़ता है. इसका एक डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट, जो हर कंपनी में प्रेजेंट है. बिकॉज दैट HR डिपार्टमेंट इफ वन ऑफ द एम्प्लॉइज बराबर अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट कम फॉर द वर्क. काम पे नहीं आ सकता 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन, बट ही इज अ वेरी गुड एंड टैलेंटेड पर्सन. वो जब काम करने के लिए आता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अपना काम पूरी तरीके से करके जाता है. सो इट इज़ द HR डिपार्टमेंट, इट इज़, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है. अच्छा, ये बंदा नहीं आ रहा है, जेन्युइन प्रॉब्लम रहेगा, उसका टेम्पररी रिप्लेसमेंट, उसके लिए कुछ सहूलियत. इफ दैट पर्सन और दैट पर्सन्स फैमिली मेंबर इज एडमिटेड इनटू अ हॉस्पिटल, ऑब्वियसली मेंटली वो स्ट्रेस्ड आउट होता है. हाँ, तो अगर तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स को आपको डेवलप करना है, स्टाफिंग को ये फंक्शन जो है परफेक्टली परफॉर्म होना चाहिए, या टू द बेस्ट एबिलिटी परफॉर्म होना चाहिए. बिकॉज इट इज नॉट जस्ट रिक्रूटिंग, इट इज रिक्रूटिंग, मेकिंग श्योर द वर्किंग कंडीशंस आर गुड राइट अप टिल द एंड. उन लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. सो ह्यूमन एज अ रिसोर्स, इफ यू वांट डेवलपमेंट इन दैट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉइज. नेक्स्ट, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज. परफेक्टली राइट. बिकॉज इफ देर इज अ टेक्निकल जॉब, एग्जाम्पल ओके, हम में से काफ़ी लोग थोड़ी ट्रेनिंग कर ले तो हम लोग ना गाड़ी चला सकते हैं. थोड़ी ट्रेनिंग, गाड़ी हम चला लेंगे. बट देर आर स्पेसिफिक मशीन्स, ह्यूज मशीन्स, क्रेन्स, JCBs ओके, उसको चलाना सबकी बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है. यू कैंट से एक ट्रक ड्राइवर को ले लो JCB मशीन में बैठा दो, नहीं बाबा, उसके अंदर उसकी जो फंक्शनैलिटी है, क्रेन की जो फंक्शनैलिटी होती है, इट्स डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी. स्टाफिंग के टाइम पे ध्यान रखना, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है, द करेक्ट पर्सन विद द करेक्ट टेक्निकल नो हाउ, ओके, पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंस इज इलेक्टेड एज एन ऑपरेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. तो इफ इट इज द करेक्ट पर्सन, ही विल एनहांस द टेक्नोलॉजी. वो टेक्नोलॉजी को और बेटर करेगा, उसमें से सीखेगा और दूसरों को सिखाएगा. सो आई रिपीट, इफ द करेक्ट पीपल आर स्टाफ्ड, अपॉइंटेड, रिक्रूटेड at the correct place, they enjoy their work, they cherish the technology which they are supposed to be using, and उसके वजह से टेक्नोलॉजी में वो इम्प्रूवमेंट भी आगे जाकर लेकर आते हैं. सो one more importance of that, improves efficiency. Again and again you get this word efficiency, and many students are like, सर उसका वो मतलब ही समझ में नहीं आता है. आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हो, वो मोबाइल में प्रोसेसर होता है, नॉट प्रोफेसर, प्रोसेसर बराबर. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. वो प्रोसेसर जिस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करता है डिपेंड करता है कि आपको एक्सपीरियंस कैसे आता है. स्मूथ आता है कि गाड़ी अटक अटक के चलती है, हीट होता है, गर्म होता है, नहीं होता है, ठंडा रहता है. व्हेन द नेक्स्ट वर्जन ओके वो प्रोसेसर का आता है, इट इज बेटर देन द ओल्ड वन. एंड अगर आप कभी एप्पल जब भी लॉन्च करता है ना अपना नया फ़ोन, तो उनका प्रोसेसर भी बेटर होके आता है. दे ऑलवेज से लास्ट टाइम के प्रोसेसर से हमारा नया प्रोसेसर 20% फास्टर है, पावर कंजम्पशन कम करता है, हीटअप कम होता है. मतलब एफिशिएंटली और बेहतर तरीके से काम वही करेगा, वही मैसेज करेगा, वही कॉल करेगा, वही फोटो लेगा, बट बेटर तरीके से करेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी में करेगा. हाँ, यहाँ पे भी वही है. इफ यू डू योर स्टाफिंग जॉब प्रॉपरली, देन द एफिशिएंसी, जो लोग काम करते हैं उन लोगों का परफॉर्मेंस का स्तर लेवल बढ़ेगा, वेस्टेजेस, फालतू नुकसान कम हो जाएगी. उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है.
उन लोगों को अपना इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। देयरफॉर कॉन्स्टेंटली लोगों को, आई नो समवन जिनसे मेरी चर्चा हो रही थी, मेरे ही आसपास में रहते हैं, ओके, मे बी करीबन वो 55 ईयर्स के रहेगी, तो मेरे लिए मैं बोलूँगा अच्छा, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस इनका हो चुका है, बट वो मुझे ये बोल रहे थे मेरे को 5 दिन का ट्रेनिंग अटेंड करना है। मैं सोचने लगा पर ये जो हमारे अंकल है ये तो 55 ईयर्स के हैं, तो इनको क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनको तो सब पता रहेगा। नहीं, ओके, क्योंकि वो जो कंपनी में काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी आया रहेगा, नया प्रोजेक्ट आया रहेगा, नया जॉब आया रहेगा, उसके वर्डिंग्स, जार्गन्स, प्रोसेसेस अलग रहेंगे। ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू डोंट गिव ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉयज़, ओके, उन लोग के पास नए जॉब का नॉलेज नहीं है, और अगर वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करे और वो काम ना हो पाए, चिढ़ जाएगी, हताश हो जाएगी, मोरल उनका कम हो जाएगा, एफिशिएंसी उनका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो इफ यू डू द स्टाफिंग जॉब प्रॉपरली एंड यू गिव द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉयज, एफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म इफेक्ट? देखो, जो स्टाफिंग होता है इट इज नॉट 2 दिन के लिए है या 4 दिन के लिए है, ये कोई मेला नहीं है जो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, सैटरडे संडे को लगेगा और फिर खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर आपको, इफ यू वांट टू बी ऑन द रोड टू सक्सेस, योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी ऑन द रोड टू सक्सेस, देन ऑटोमेटिकली इफ यू वांट दैट, अगर वो थिंकिंग है लॉन्ग टर्म प्लान, देन योर स्टाफिंग फंक्शन हैज टू बी डन वेल। ओके, यू हैव टू एम्प्लॉय पीपल। जब आप वो कुर्सी में बैठते हो इंटरव्यू लेने के लिए, आपको टटोलना पड़ेगा, गेज करना पड़ेगा। ये जो सामने बैठा है ना, ये क्या 2 दिन का मेहमान है? ये अभी आएगा, जैसे उसको बेटर पगार मिल जाएगा यहाँ से भाग जाएगा। नहीं नहीं, ये हमारे लॉन्ग टर्म प्लान में ये बैठता नहीं है। मत दो इसको काम, कुछ बहाना देके भगा दो। यू वॉन्ट पीपल हु विल स्टिक विथ यू। लंबा रिश्ता, छोटा नहीं, लंबा रिश्ता। Qualified, efficient and skillful workforce is always an asset of the organization. Proper selection of employees leads to the organization to the path of success. You can't be having people who come, 2 महीना काम करते पगार लेके भाग जाते, 2 महीना काम करते ट्रेनिंग पगार लेके भाग जाते। नहीं, if they are thinking long term, then only there will be a long term effect. Next, essential contribution. देखो भाई, contribution हम में से सब लोग करते हैं। जब देश में किसी भी तरह का नेचुरल कैलामिटी आता है, ओके, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, वो कहते हैं क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो? प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, कैन यू कंट्रीब्यूट? एवरीबडी सेज हाँ चलो भाई, अपनी तरफ से जो हो पाता है मैं इतना कंट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं उतना कंट्रीब्यूशन करता हूँ। द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग puts a major contribution towards the development of the entire organization. If you read about staffing ensures the continuity, gadi chal raha hai, and the growth, okay, the increase of the organization through the development of employees. The employees become better, the company becomes bigger. Selection is based on the ability of the प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, ओके, जिनको काम पे रखा जाएगा, वो उनकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर challenges. Okay, those people, you just can't sit and do an interview and select your, अरे ये तो मेरा साला है, ये तो मेरे ससुर का रिश्तेदार है। नो नो नो, नहीं, उनकी काबिलियत has to be in sync with the future prospects of the company. If you are employing someone, he or she has to be capable of putting in their contribution towards the future development of the company. So ये तो हो गया contribution का मुद्दा. Next, provides job satisfaction, very important function, part of staffing. If you ask many of the people that go to work, आपके आसपास में ना भाई बहन मम्मी पापा जो काम पे जाते हैं, many people say मैं तो पगार के लिए जाता हूँ, to earn salary, बाकी I am not interested. That means they don't have satisfaction at their workplace.
ओके, वो संपूर्णता उनमें नहीं है। सो ये किसकी गलती है? ये जो एनवायरनमेंट वहाँ पे ऑफिस में है, कंपनी में है, जो एनवायरनमेंट, जो डिपार्टमेंट बनाता है, ये उनकी गलती है कि एम्प्लॉयज को ऐसा लग रहा है कि हमारा और कंपनी का कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो आते हैं, अपनी क्या कहते हैं, अटेंडेंस को देते हैं, हमारा पगार लेते, हम जाते हैं। नो, स्टाफिंग हैज टू बी सच दैट द पीपल हु आर वर्किंग दे लव द जॉब, दे वांट टू कम अहेड। और वो कभी कंपनी अगर बुरे वक्त में आई तो लोगों का मोराल, टीम वर्क, कनेक्ट विद द कंपनी, जुड़ाव ऐसा होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज है खुद जाके बोले हम 1 महीना बिना पगार के काम कर लेंगे, हमारी कंपनी को डूबने नहीं देंगे। दे शुड बी सो हैप्पी, दे शुड बी सो सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। एंड ये ऐसा एनवायरनमेंट बनवाना किसका काम है? स्टाफिंग के फंक्शन का काम होता है कि बाबा जो लोग काम करने के लिए आते हैं वो खुश है अपने काम से। नेक्स्ट एंड लास्ट, मेंटेन्स हार्मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि एक कोच जो होता है ना एक क्रिकेट टीम का, ओके, उसके लिए ये बहुत बड़ा, बिकॉज द पीपल हु प्ले क्रिकेट इन द इंडियन क्रिकेट टीम स्पेशली, क्योंकि वो लोग को के बारे में आपने सुना है, बराबर, दे आर बिग नेम्स, बहुत बड़े नाम है, पैसा अनगिनत है, तो ईगो वो भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उनका। सबको लगता है मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। अभी कोच का ऐसा काम है कि बाबा ये तो सब आ गए अपने टीम में, अभी मैं शांति कैसे बनाऊं, ये लोग एक टीम के जैसे कैसे खेले, ये तो मेरा काम हो जाता है। यस, सिलेक्ट तो कर लिया सिलेक्शन की कमिटी ने, अब इन लोगों के बीच में भाईचारा रखना, हार्मनी, शांति, ये कोच का काम हो जाता है, ये उसका एक फंक्शन हो जाता है। सो स्टाफिंग, इफ द करेक्ट पीपल विद द करेक्ट मेंटल टेम्परमेंट, बुद्धि, सद्बुद्धि, ओके, गुस्सा वाला, भड़कीला वाला नहीं होते हैं, एवरीबडी कम्स विद देयर ओन गुस्से का लेवल, बट बाबा ऐसा लोगों को अपॉइंट करो कि भाई सब लोग एक गाड़ी में सवार होकर आगे ये कंपनी को लेकर जा सके। वी हैव गॉन थ्रू 10 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। राइट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द मैजिक वर्ड, द मैजिक फ्रेज, काफ़ी लंबा है, बॉलीवुड का डायलॉग है। MHCET करो, इट्स एन एग्जामिनेशन जो एडमिशन्स के लिए काम आता है। ओके, MHCET करो, हिंदुजा, लाला लाजपत राय, रहेजा, जय हिंद कॉलेज में जाओ। MHCET करो, हिंदुजा, लाला लाजपत राय, रहेजा, जय हिंद कॉलेज में जाओ। नाउ ऐसा मत बोलो अरे सर पहला बोलना चाहिए था हमको, हम ये कब का टेस्ट का तैयारी करता। दिस इज जस्ट मेड सच दैट आपको स्टाफिंग के जो 10 मुद्दे हैं वो आपको याद रहे। MHCET, HLRJC, अगर मैं ऐसा बोलने लगा तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो समवेयर यू हैव लाला लाजपत राय, द जय हिंद, द रहेजा एंड द हिंदुजा कॉलेज। 10 पॉइंट्स कैसे आने वाले हैं जैसे आपको दिख रहे हैं अभी हमारे बोर्ड पर। मैनेजरियल फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, cordial relationship, efficiency, technology, harmony, long-term effect, resources, job satisfaction, and essential contribution. MHCET करो, that's full form wise Maharashtra Common Entrance Test. Okay, it is required for admissions in various institutes in the state of Maharashtra. करो, हिंदुजा, लाला लाजपत राय, रहेजा, जय हिंद कॉलेज में जाओ। दे आर वेल नोन कॉलेजेस इन बॉम्बे के शहर में। बाकी अगर आपको दूसरा कोई आपका प्यारा कॉलेज है आप वहाँ पे वो भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं है। जस्ट ट्राई टू मेक अ फ्रेज जहाँ पे ये जो कोडिंग है आपको याद आ जाए। ओके, सो स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस हो चुका है। इसके पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग का किया था और उसके पहले हमने प्लानिंग का किया था, और प्लान आगे है कि हम लोग ये फंक्शंस आगे जाके 3 जो बाकी है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया
कृपया करके लाइक कर दीजिए। डिसलाइक करते हो कोई हर्ज नहीं है, और उसका रीज़न हमको डेफिनेटली बता दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और पूरे इलाके में सबको बता दीजिए हमारे चैनल के बारे में। वी रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम यू, ओके। हमें आपकी सहायता की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज विदाउट योर हेल्प every lecture that is being uploaded here or that is sometimes being conducted live, उसका जो बेनिफिट है, फ़ायदा, वो कुछ ही लोगों तक रह जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर ये खबर पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, तो उन तक रेगुलरली एक अपडेट ज़रूर पहुंच जाएगा। टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का छोटों का सारे परिवार वालों का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।